Hello everyone, let's start with our chemical reactions of alkali. Last time you have seen many chemical reactions of alkali. Just we'll revise that and we'll continue with the same chemical reaction. Okay. First chemical reaction. Here are some chemical reactions we can able to see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First one with aqueous KOH. Just move to that. We'll revise first one by one. Okay. With aqueous KOH, or you can, instead of KOH, you can use NaOH also. You have to take alkyl halide, just react with what aqueous KOH. What will happen is very simple chemical reaction is we are getting alcohol and what? KX. This aqueous KOH must be there. Okay, just use a pen. Now instead of this R, you can use anything. You can use CH3 also if you want to use a CH3. If you use a Cl, CH3 plus Cl, if you are reacting with a KOH, what will happen? This KCl will combine with each other and this CH3 will combine with OH. You will get CH3 OH and plus you will get what? KCl. The CH3 is called as methyl alcohol. Okay. Now instead of R, you can take methyl, ethyl, N-propyl, secondary propyl, all any kind of alcohol you can use. We have seen this chemical reaction last time. Let's move to the next one. Is now next reactions we are going to see is this. Some of the next one, yes, chemical reactions of alkali. Again, second chemical reactions, moist with a moist silver oxide. Let's start with that, with the moist silver oxide. This also chemical reaction we have seen last time. What happened with the moist Ag2? You are getting alcohol, right? Rx, we are using Rx here. Okay, Rx you are getting, you are reacting with Rx with what? Ag2, which is an aqueous one. Okay, again we are getting what? Alcohol and plus 2 AgX. Now this chemical reaction is very simple. As far as moist Ag2 is considered, we already seen that this moist Ag2 combined with H2 and it gives you what? Silver 2 AgOH, and this 2 AgOH is responsible to give you what? Alcohol. Okay, this is also reaction also we have seen. Let us move to the next one. Reaction is, let us start with third chemical reactions. Third, with the dry silver oxide, we already seen this dry silver oxide. Now just little bit of change. In moist silver oxide getting alcohol, but in dry silver oxide you're getting what? Ether. We'll start with the example of this. I think we have seen example also, but let us start with this. If instead of R, if I write here CH3 Cl, and if I'm going to react with what? Ag2, okay, again you will record two molecules of Cl, you will take a CH3. Now what will happen is this, okay, this 2 Ag2, this CH3O will going to combine. So what you're going to get is this. You will just make a changes in with the color. Okay, this CH3 will combine with oxygen and this CH3. Okay, so CH3, oxygen and CH3, you will get CH3 plus you will get here oxygen and you will get Ag. I'm sorry, this is CH3. Okay, we'll about this, we'll make changes. This is CH3, oxygen, and you are getting what? CH3. Now plus what you're going to get, you are going to get AgCl, because two silver atoms are there. First chlorine atom and second chlorine atom, it's going to give you what? To AgCl. This reaction you also see. Let us move to the next one. Now there is much more difference. Remember this. Now what is the difference between these reactions are? In moist Ag2, we have seen it gives you what? Alcohol. Now in case of dry silver oxide, we are getting what? Ether. That is what it changes. Let's start with the next reaction is fourth one. Now in fourth you have seen again with aqueous KCN and AgCN. Here we are getting what? Just check out this alkyl halide. We are going to react with what? KCN. Instead of KCN you can take NaCN also, sodium cyan also. Okay, nothing is very important in these reactions, but one of the very important, that time also I told you that importance of this is important. Okay, this reaction that much important is. But what is important, remember now one thing, what are the number of alkyl halide we are going to take here. Okay, जितना तुम लोग इधर A ले रहे हो, अल्काइल ग्रुप में सपोज दो कार्बन आटम है, उसको अगर तुम लोग साइनाइड के साथ जोड़ देंगे, one carbon is going to increase. This reaction plays very important role to increase the number of carbon atom. Okay, for example, if you take alkyl group here and if I write here CH3 Cl, and if I'm going to react with what? KCl.
ये रिएक्शन भी हो चुका है, हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम में. What are you getting? We are getting a KCl and this CH3 combined into what? Cyanide. So you are getting what? CH3C triple bond N. This is what methyl cyanide or methyl nitrile also you can say. This is called as KCl. Now, important about this reaction is number of carbon atom is only 1. Number of carbon atom is 2. So any product, if you want to increase the number of carbon atom, yes, convert into alkyl halide that compound, react with the KCl, you will get 1 carbon atom. Okay, that is what important about this reaction is. Let us move to the next one. Is we already see many example of this. Okay, I'll just say start the reaction number 5, reaction with AgCN. Now there is much more confusion between KCN, NaCN and AgCN. Silver cyanide तुम लोगों को cyanide नहीं देगा. Okay, what it gives is this alkyl cyanide, alkyl halide. You are reacting with silver cyanide. It gives what? RNC, isocyanide. Okay, this is also called as carbolamine. Now इसको मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को. देखो इधर जैसा अगर एक एग्जांपल देखते हैं इसको, हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा. इंस्टेड ऑफ दिस यू विल यूज रेड कलर. क्या हो रहा है, रेड कलर क्यों नहीं आ रहा है? ओके ठीक है, आ नहीं रहा है तो उसको ऐसे देख देते हैं. इंस्टेड ऑफ आर इफ यू गोइंग टू टेक अ CH3. Now there is, yes, this is what alkyl group. So if you take here a CH3, ठीक है, और X की जगह हम लोग इसको Cl लेते हैं, react with AgCN. अभी AgCN जो है सिल्वर साइनाइड, it going to react definitely, no doubt about this. अभी क्या मिलता है देखो, जैसे तुम लोगों को इधर ऐसा नहीं मिलेगा, मिथाइल साइनाइड नहीं मिलेगा, तुम लोगों को मिलेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड. ये इधर आएगा एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आटम भी आएगा. ये जो साइनाइड है मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इसको हम लोग एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, याद रखो इसको. ओके, व्हाई एम्बिडिएंट? बिकॉज देयर आर 2 डोनर एटम्स व्हिच कैन इजीली डोनेट व्हाट? इलेक्ट्रॉन पेयर, Lv. ओके, इसको ये फॉर्म को क्या बोलते हैं? एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल इसको बोलते हैं. दिस मूव द नेक्स्ट वन इज नाउ. अगर हम लोग नेक्स्ट की रिएक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा सा ये भी रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं. ओके, जस्ट मूव द नेक्स्ट वन इज बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट द MCQ. अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था इसके 2-4 MCQ देखते हैं. ओके, ethyl chloride react with the KCN, which is the major product of the KI. Okay, what is ethyl chloride is? If you want to write ethyl chloride is C2H5Cl. You are reacting with the KCN. ठीक है, देखते क्या मिलेगा. मैं तो बोल रहा हूँ KCl में जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप जो है साइनाइड के साथ जाएगा. ठीक है, तुम लोगों को कुछ ऐसे मिलने वाला है मेरे ख्याल से. ओके, चूज योर आंसर. ऑफ कोर्स डेफिनेटली वी आर गेटिंग हियर व्हाट? KCl मिलेगा. देखते हैं क्या मिलता है. वी आर गेटिंग इथाइल साइनाइड, देखते हैं, और इथाइल आइसोसाइनाइड और इथिलीन ब्यूटेन और ब्यूटेन. ठीक है, अपना आंसर चूज कर लो. द आंसर इज यस, दैट्स व्हाट इथाइल साइनाइड. वी ऑलरेडी सीन दिस. ओके ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट रिएक्शन इज नंबर 6. दैट इज रिएक्शन विद व्हाट? NaNO2 and KNO2. Let's start with this reaction first. Okay, here we go for that reaction. Okay, here we goes reaction with NaNO2 or KNO2 reaction. Now this reaction you already seen. What is this? Sodium nitrite or potassium nitrite. एक बात ध्यान में रखो, if you going to take this sodium nitrite or that, this is what Na. ठीक है, dash O dash and double bond O, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट. सॉरी, किधर गए हम लोग? रिएक्शन नंबर 6 चल रहा है, क्या चल रहा है? Just move on home first. Okay, let us move to the next reaction is. Okay, let's start with the reaction number 6. That is reaction with NaNO2 or KNO2, potassium nitrite और सोडियम नाइट्राइट. ये सोडियम नाइट्राइट क्या देखते हैं पहले इसको. ये भी हम लोगों ने रिएक्शन देख चुके, जस्ट वी आर रिवाइजिंग. ओके, तो ये है सोडियम, इसको हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ. ये ट्रिपल बॉन्ड O जाएगा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग?
सोडियम नाइट्राइट दैट इज NaNO2 वी आर गोइंग टू रिएक्ट सोडियम नाइट्राइट विद व्हाट, किसके साथ हम रिएक्ट करते हैं इसको, अल्काइल ग्रुप के साथ दैट इज RX। अभी अल्काइल ग्रुप के साथ इसको अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है, देखो ध्यान से, द सोडियम इज गोइंग टू कंबाइन विद व्हाट X, ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजन एटम इज गोइंग टू कंबाइन विद R एंड वी आर गोइंग टू गेट दिस, वी आर गोइंग टू गेट RON डबल बॉन्ड O। ये भी हम लोगों ने देख चुका है, ओके, वी आर गेटिंग और अल्काइल नाइट्राइड। एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने दिया था मेरे ख्याल से, सी मिथाइल नाइट्राइड दैट इज N डबल बॉन्ड O, वी आर गोइंग टू रिएक्ट विद व्हाट, इसको थोड़ा इजी करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा कैंसिल कर देते हैं इसको, बिकॉज सोडियम के लिए ये, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड है तो इसको हम लिख लेते हैं NaON डबल बॉन्ड O प्लस वी आर टेकिंग व्हाट मिथाइल क्लोराइड। अगर मिथाइल क्लोराइड लेते तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम और ये क्लोरीन एक साथ चले जाएंगे, मिथाइल ग्रुप विल अटैच टू दिस ऑक्सीजन एटम, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट दिस CH3ON डबल बॉन्ड O मिलेगा इधर आपको, डेफिनेटली गेटिंग व्हाट NaCl हियर, ठीक है। अभी यही रिएक्शन तुम लोग जरा हट के भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ N डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर मैं इसको CH3 कर देता हूँ, इधर इसको Cl कर देता तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, is going to react with this and definitely again you are going to get the same thing, okay। जिस तुम लोगों को पसंद आता है तुम लोग इसी तरह से लिख सकते हो। दिस रिएक्शन ऑल्सो वी हैव सीन रिएक्शन विद NaNO2, ठीक है। अभी थोड़ा फर्क, अगली रिएक्शन हम लोगों ने देख चुके हैं। इन नेक्स्ट रिएक्शन ऑल्सो इंस्टेड ऑफ NaNO2 एंड KNO2 वी आर टेकिंग व्हाट AgNO2। अभी क्या होता है देखो, इन AgNO2 वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, तुम लोगों को नाइट्राइट नहीं मिलेगा, तुम लोगों को कुछ अलग मिलेगा, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन इज नाउ इन सेवेंथ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद AgNO2। देखते हैं क्या मिलता है, देखो इधर, अब ये रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था कि इधर तुम लोगों को नाइट्रो ग्रुप मिलेगा, ओके। इधर अगर तुम लोग उसको अंदर NaNO2 लेते हो, NaNO2 और पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट लेते हो तो नाइट्राइट कंपाउंड मिलता था, नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी AgNO2 मिलेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, इधर फिर से वही एक बार फिर से वही ट्राई कर लेते हैं, ओके। दिस इज व्हाट Ag, ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, N डबल बॉन्ड N लेते हैं, ये हुआ सिल्वर नाइट्राइड। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं, RH के साथ, RX हो गया। अभी क्या होता है देखो, दिस सिल्वर ग्रुप विल कंबाइन विद X एंड डेफिनेटली आर गोइंग टू टेक व्हाट AgX, ये तो मिलने वाला है अभी। लेकिन होता ये है, अगर अल्काइल ग्रुप इधर ज्वाइन करता इस ऑक्सीजन को तो तुम्हें नाइट्राइड मिलता था, लेकिन अभी होता ये नहीं है, अभी होता ये है, देखो ध्यान से, O माइनस ही रहेगा, इधर N आएगा, डबल बॉन्ड O आएगा, इधर क्या आएगा, अल्काइल ग्रुप दैट इज अल्काइल ग्रुप, ओके। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था इसका, इंस्टेड ऑफ R यू कैन टेक मिथाइल और इथाइल, इन्हें अल्काइल ग्रुप यू कैन टेक, ओके। ये भी हम लोगों का रिएक्शन हो चुका है, ओके। जस्ट मूव द नेक्स्ट वन इज, okay, reaction number 8, that is reaction with the sodium alkoxide, okay। Let's move to the next one, this one। और now reaction with sodium alkoxide Williams synthesis, इसको बोल दिया जाता है, और preparation of ethyl is very important one with sodium alkoxide, ठीक है। तो take alkyl halide, okay, reacting with what, how to convert this alkyl halide to ester group, देखते हैं, ether group, sorry, ठीक है, methyl chloride react with what sodium ethoxide, getting what this। अभी इसके बारे में भी हम लोगों ने देख चुके हैं, जस्ट वी विल रिवाइज दिस वन सेकेंड। एक्चुअली होता ये है, ठीक है, ये लिया हम लोगों ने मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इधर हम लोग क्या लेने वाले हैं, NaOC2H5, ठीक है। अभी देखते क्या होता है, देखो, this chlorine atom and this sodium atom they're going to combine, it gives you NaCl, and this methyl group is going to combine with what, OC2H5 plus you are getting what, NaCl, okay। This is called as ethyl methyl ether, इसको बोलेंगे हम लोग ethyl methyl ether, okay। ये भी रिएक्शन हम लोगों की हो चुकी है, okay, okay। Just you have to practice much and more। This next example is रिएक्शन नंबर 1 तो हो चुकी है हम लोगों की। अभी आते हैं नेक्स्ट, इधर तक हम लोगों ने सब केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं, ठीक है। जस्ट वी विल रिवाइज, हम लोगों ने अभी रिवीजन लिया है। अभी 9th, आज सब केमिकल रिएक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद 9th वन। अभी 9th क्या है, इट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट वन।
अभी तक हम लोगों ने जितना भी केमिकल रिएक्शन देखा था वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, एसिड रिएक्शन था। अब एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़े आते हैं, ठीक है। और इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, उसको पहले बारे में जाते हैं, ठीक है। Now it's a dehydrogenation reaction with alcoholic KOH, ठीक है। हम लोग इसमें तो क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस अल्कल हलाइड, ओके। हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, अल्कल हलाइड का कन्वर्जन करने वाले हैं अल्कीन के ऊपर। अभी थोड़ा एक बात देखो, CH3 और CH2Cl, ठीक है, कंपाउंड। ये कार्बन को बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन एटम, जिसको बोलते हैं बीटा कार्बन एटम, ठीक है। और एक बात देखते हैं, अभी अल्कीन की तरफ चलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अभी डबल बॉन्ड है, इस दोनों कार्बन है, ये हाइड्रोजन आइटम, इसको भी बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन आइटम, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन आइटम। ये हाइड्रोजन आइटम को हमको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन आइटम, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, ओके। ध्यान से बात, ध्यान में सुनना है, ओके। बात इधर क्या था, मैंने क्या बोला था, अगर हाइड्रोजन आइटम ये कार्बन को अटैच है, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा। डबल बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन एंड बीटा हाइड्रोजन, कंफर्म, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। तो हम लोग क्या देखने वाले, हम लोग अभी देखने वाले कि अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखने वाले हैं बाय रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH। एक्वियस KOH के साथ हमने जो रिएक्शन की थी उधर अल्कोहल मिलता है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, ओके। स्टार्ट द नेक्स्ट वन इज it's dehydrogenation reaction, okay। take alkyl halide react with alcoholic KOH, तुम लोगों को क्या मिलने वाला है, just little bit of heat you have to supply, you're getting alkene, you're getting what, gas, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से, देखो इसको बोलते हैं इथाइल ब्रोमाइड, ये इथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। वे रिएक्ट विथ व्हाट, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, ओके। देखो क्या क्या हो रहा है, जस्ट प्रेसिंग द बटन्स यू कैन इजीली एबल टू सी एनिमेशन, ओके ओके। इस बारी तो मैंने बोला था कि ये हाइड्रोजन आइटम, इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन आइटम, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन आइटम। ऑफ कोर्स दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन आइटम अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन आइटम, और इसके बाजू में जो बीटा कार्बन आइटम है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम अटैच टू बीटा कार्बन है, इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन आइटम, ठीक है। अभी क्या मिलेगा, ओके, दिस यू आर गेटिंग इथिन प्लस व्हाट यू आर गेटिंग KBr, ओके, ठीक है। और कुछ मिल रहा है, H2 मिल रहा है, इसको बोलते हैं अल्कल हलाइड, कन्वर्जन ऑफ अल्कीन, ओके। अब इधर देखो, इधर होता क्या है, व्हेन यू आर टेकिंग एनी अल्कल एंड यू आर रिएक्टिंग विद अल्कोहलिक KOH, लिटिल बिट ऑफ हीट यू हैव टू सप्लाई। देखो क्या होता है, फर्स्ट थिंग अल्फा कार्बन आइटम के ऊपर तो हाइड्रोजन आइटम रहेगा, उसके बाजू वाला है बीटा, उसका एक हाइड्रोजन आइटम और अल्फा का हाइड्रोजन आइटम दे विल कंबाइन, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा, CH डबल बॉन्ड, C इसको बोलेंगे इथीन, okay। So ethyl alkyl halide, that is ethyl bromide, when react with or heated with alcoholic KOH, it gives corresponding alkene, that is what ethene you are getting, okay। Let's take another example, what will the action of alcoholic potassium isopropyl bromide। अभी isopropyl bromide हम लोग इसको बोलते हैं isopropyl bromide, okay, ठीक है। इसको और एक नाम है, इसको secondary propyl bromide भी बोल सकते हैं, okay। Let's start with this, okay। reacting with what now again aqueous KOH। अभी क्या बता सकते हो क्या होगा, देयर आर मेनी चांसेस। देखो ये इसको, ये भी है, ये अल्फा हाइड्रोजन आइटम, ये बीटा है, ओके। इसको एक काम करते हैं, इसको फिर से पेन लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अल्फा कार्बन आइटम, ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो चांसेस 50-50% है कि इधर का भी एक बीटा हाइड्रोजन इस अल्फा के साथ जा सकता है, इधर का भी इसके साथ जा सकता है, डिपेंड अपॉन दैट। तो देखो क्या मिलता है, ओके, व्हाट यू आर गेटिंग, डबल बॉन्ड इधर आ रहा है, ठीक है, प्रोपीन मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इधर का भी जा सकता है, इधर का भी आ सकता है, ओके। यू आर गेटिंग व्हाट प्रोपीन, 50-50% चांसेस, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, जस्ट सेम है। अगर ये सोचो कि अगर थोड़ा अलग रहेगा, तो इधर भी है, सेम ही है बीटा बीटा, अगर थोड़ा अलग हो तो क्या होगा, देखो अभी गिव द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अभी ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। अभी इधर मजा आएगा, देखो क्या होता है इधर, ओके। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड वी आर रिएक्टिंग विद aqueous अल्कोहलिक KOH, to see what happen again, we know that this is what, this is अल्फा, ये वाला तो बीटा है, ये वाला भी बीटा है, ठीक है, बीटा
बीटा बीटा, ओके, इधर सब बीटा बीटा ही है, तब भी होगा क्या, चांसेस है कि इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, ओके, तो इधर डबल बॉन्ड बनता है तो इसको मिलेगा आइसोब्यूटालीन मिलेगा, आइसोब्यूटालीन, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट विल द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH ऑन 2-chlorobutane, ओके, ये थोड़ा अलग एग्जांपल आएगा, अभी देखते हैं इसको। अभी बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट्स स्टार्ट, ये अगर हेलोजन एटम इस कार्बन को अटैच है तो ठीक है, तो ये तो अल्फा हुआ, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ओके, ये अलग अल्फा बीटा गामा की तरफ जाएगा, सो ये अल्फा, ठीक। अभी देखते हैं इसको रिएक्ट करते हैं, 2-chlorobutane को रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अभी देखते हैं क्या होता है। ये अल्फा ये होगा, ये बीटा हो गया, ओके ओके, व्हाट इज साजेब्स रूल, इसको पहले देखते हैं। अभी चांसेस इधर है, देखो ये जो बीटा है, 1 मिनट पेन लेते हैं, ये जो बीटा कार्बन आटम है 3 हाइड्रोजन आटम्स अटैच है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन आटम है, तो व्हाट इज साजेब्स रूल, साजेब्स रूल बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन आटम व्हिच हैज अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम। अगर ये अल्फा हम लोग बोलते हैं इसको, अगर 1 मिनट फिर से, अगर इसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन आटम बोलते हैं, ठीक, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा कार्बन आटम के ऊपर 3 हाइड्रोजन आटम है, इधर कितना है 2 ही, तो चांसेस क्या बोल, साजेब्स रूल क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन आटम व्हिच हैज अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, दैट मींस इधर से आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये क्लोरीन आटम ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ओके, इस हाइड्रोजन के साथ देखो क्या मिलता है, ठीक है, सो डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा अकॉर्डिंग टू साजेब्स रूल्स, ओके, डबल बॉन्ड किधर बनेगा, किस बीटा कार्बन आटम से हाइड्रोजन आएगा, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम होंगे उसके साथ, वही सेंटेंस थोड़ा अलग से हम देख सकते हैं, ओके, लेट्स सी दिस, ओके, in dehydrogenation reaction, the preferred product is that alkene which has a greater number of alkyl group attached to doubly bonded carbon atom, okay, ठीक है, थोड़ा आगे जाते हैं, फिर इसको dehydrogenation क्यों बोलते हैं, because this is this at the same time we are eliminating chlorine atom also and we eliminating hydrogen atom also, so इसको बोलते हैं dehydrogenation, एक अल्फा का जा रहा है, एक बीटा का जा रहा है, इसके वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, सारा MCQ अगेन, फर्स्ट MCQ है, ओके, कंपाउंड दिया है अल्कोहलिक KOH के साथ, हम लोग इसको रिएक्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट क्या है हम लोगों ने अभी देखा था, फिर से इसको, ये तो हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा कार्बन आटम, ये हुआ बीटा कार्बन आटम, किस बीटा कार्बन आटम के साथ हाइड्रोजन कम है, इसके पास 2 हाइड्रोजन आटम है, इसके पास 3 हाइड्रोजन आटम है, तो डबल बॉन्ड कहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड इधर मिलेगा, तो ये एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन आटम चला जाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन आटम चला जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम लोगों को मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, देखते हैं क्या है कंपाउंड, अभी इसको तो नाम तो देखते हैं क्या नाम है आएगा, ओके, ABCD 2 ब्यूटेन 1 ब्यूटेन, तो ये क्या है, 2 ब्यूटेन है, ब्यूटेन है मतलब डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ठीक है, तो 2 ब्यूटेन तो आना चाहिए, देखते हैं क्या आता है, ओके, 2 ब्यूटेन। Let's move to the next MCQs. Which of the following reaction is the product when alkyl halide react with KOH? Okay. Which of the following reaction is the product when alkyl halide react with the KOH? alkyl halide के साथ अगर अल्कोहल halide के साथ, ठीक है, पेन लेते हैं फिर से, which of the following reaction is the product when alkyl halide react with, तो क्या alkyl halide क्या है, RX है, किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, KOH के साथ रिएक्ट क्या कर रहे हैं, KOH क्या एक्वस है, अल्कोहलिक है, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल रहेगा तो क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा, हम लोगों ने अभी देखा है इस रिएक्शन को, ठीक है, सो अल्केन अल्कोहल, या गेटिंग व्हाट एल्डिहाइड और गेटिंग अल्कीन, एसिड अल्कीन, हम लोगों ने अभी देखा था इसको, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, तो अभी तो हम लोगों ने अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन देखा, व्हाई अल्फा बीटा वी ऑलरेडी सीन, लेट्स स्टार्ट द 10th रिएक्शन इज 10th one is yes with Hoffman's ammonolysis reactions. Again, this is very important, much more important about this reaction we're going to see in chapter called as amine. So with the NH3 इसको Hoffman's ammonolysis बोलते हैं, react RX alkyl halide with alcoholic NH3 getting what RNH2, ठीक है, excess लिया है,
वी आर गेटिंग अ प्राइमरी अमाइन। अगर लेकिन अगर तुम लोगों ने अमोनिया एक्सेस लिया तो देखो क्या होता है। ओके, अभी इधर क्या मिलेगा देखो, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने इधर लिया CH3Cl, आई एम गोइंग टू रिएक्ट विथ अमोनिया। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, ये क्लोरीन आइटम या हाइड्रोजन आइटम कंबाइन हो जाएगा, तुम लोगों को क्या मिलेगा, CH3NH, सॉरी, ठीक है, मिलेगा। अभी फिर से इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, CH3N, ये इधर लेते हैं, फिर से क्या होगा, ये रिएक्ट होगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा एक साथ, यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग CH3NH, इधर क्या आएगा, फिर से इधर CH3 आएगा, अगेन ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग हियर HCl, और ऐसे कुछ इधर HCl मिल रहा है। अब इधर फिर से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की पेयर है, ये फिर से इधर नीचे आ जाएगा, CH3N, इसको लिख देते हैं CH3, इसको लिख देते हैं H। ये फिर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ, क्या हो जाएगा, वी आर गेटिंग अगेन व्हाट, HCl, ये मिथाइल ग्रुप इधर अटैच हो जाएगा, यू आर गेटिंग CH3 नाइट्रोजन आइटम, इधर मिलेगा CH3, इधर मिलेगा CH3, इधर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, ठीक है। अगेन एक HCl मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब फिर से इधर इसको लिख देते हैं CH3 नाइट्रोजन, CH3 नाइट्रोजन, इधर एक इलेक्ट्रॉन की पेयर है, फिर से क्या करेगा, और रिएक्ट करेगा मिथाइल क्लोराइड के साथ। अभी क्या होता है देखो ध्यान से, वी आर गेटिंग CH3N, वी आर गेटिंग द CH3, इधर भी मिलेगा CH3, इधर मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड CH3 के साथ, इधर आएगा प्लस साइन, ये क्लोरीन आइटम आएगा, Cl- कुछ याद आ रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट, प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट, सेकेंडरी अमोनियम सॉल्ट, टर्शियरी अमोनियम सॉल्ट, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ओके, इसके बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे अमाइन चैप्टर में, ठीक है। फिर से एक बात याद रखना, अगर तुम लोग एक्सेस ले रहे हो अल्कल हलाइड, अगर एक्सेस ले रहे हो अल्कल हलाइड, तो रिएक्शन प्राइमरी अमाइन तक जाएगी। बट इफ यू आर चूजिंग अल्कोहलिक अमोनिया एज एक्सेस वन, तो दिस अल्कोहलिक अमोनिया डेफिनेटली क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करते चला जाएगा। अल्कोहलिक अमोनिया, मिथाइल क्लोराइड, ये सब हो जाता है। ओके, तो ये क्या मिलेगा तुम लोगों को, मिक्सचर मिलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, ये हुआ प्राइमरी। ओके, ये काम करते हैं, पिंक कलर लेते हैं थोड़ा अलग, ये इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको बोलेंगे टर्शियरी, इसको बोलेंगे क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इन लोगों को मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ मून्स अमोनोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। Let's move to the next one is 10th reaction to be now 11th one, that is reaction with the silver carboxylate, silver salt of carboxylic acid. Let's start with this reaction with the silver carboxylate reaction. Okay, क्या होता है देखो, फिर से preparation of ester, हम लोग एस्टर बनाने वाले हैं, RX reacting with the carboxylate salt, we are getting what, ester. Okay, okay, तो देखते हैं क्या मिलता है अभी फिर से। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं, ये एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं RC+OH, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस हाइड्रोजन आइटम को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, RC+O माइनस है, इधर सपोज मैं Na+ लिखता हूँ, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अगर पोटेशियम लिख देता हूँ, सपोज इंस्टेड ऑफ दिस इफ अगर मैं पोटेशियम लिख देता हूँ, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इफ आई राइट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। अभी RX जो है, RX हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करने वाले, तो इसको लिख देते हैं। ओके, ऑक्सीजन C+O R, देखो क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाता है, दिस AgX इज गोइंग टू कंबाइन और R will react with our oxygen, you will get R oxygen C+O R, इसको बोलते हैं एस्टर। द कंपाउंड विच कंटेन क्या, C+O O'
एज अ फंक्शनल ग्रुप इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो ये एस्टर हो चुका है एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग व्हाट AgX। सो इंस्टेड ऑफ R यू कैन राइट मिथाइल, इंस्टेड ऑफ दिस R यू कैन राइट इथाइल, एनीथिंग एल्स। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसके अंदर मैं CH3 लेता हूँ, CH3Cl लिया, इधर मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेता है। एसिटिक एसिड का मतलब आएगा, क्या मतलब आएगा देखो इधर, एसिटिक एसिड ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन में निकाल देता हो, ओके, C डबल बॉन्ड O, इसके जगह में सोडियम लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अगर इधर में पोटेशियम लिखते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इधर क्या मिलेगा फिर, ये तो चला जाएगा मिथाइल, सॉरी दिस सिल्वर क्लोराइड तुम लोगों को मिलेगा, और इधर क्या आएगा, इधर आएगा CH3O C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा CH3। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये मिल गया तुम लोगों को मिथाइल एसीटेट। ओके, इसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। मिथाइल एसीटेट इसका और एक IUPAC नाम है, उस सब हम लोग एस्टर चैप्टर में देखेंगे। टिल टाइमिंग ये बात याद रखना कि इधर एस्टर मिल रहा है तुम लोगों को, यू आर गेटिंग मिथाइल एसीटेट। ओके, इसको और एक नाम है मिथाइल प्रोपियोनेट, और बाद में देखते हैं उसको कैसे आएगा। ओके, तो ध्यान से देखो इसको और स्टार्ट नेक्स्ट वन। समझ में आ रही बात। सो 11th रिएक्शन विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इज नाउ लास्ट रिएक्शन, दैट इज 12th वन, द रिएक्शन विद मेटल। नहीं, चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, अभी चैप्टर बाकी है। टुमारो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। ओके, to start of this 12th reaction with the metal। अभी रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं मेटल, सोडियम मेटल। सो अल्काइल halide we are reacting with the sodium, two halogen atoms, RX, two halogen atoms is going to combine with the sodium। क्या मिलेगा, अल्केन। श्योर, देखो मिल रहा है। ओके, दिस अल्काइल ग्रुप will combine, you are getting one alkane and 2NX। अभी एग्जाम्पल, अगर मैं इसके एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इधर तुम लोगों को पता चलेगा एग्जाम्पल इसका क्या आएगा। इंस्टेड ऑफ R if I use to write it CH3, इधर Cl लिख देता हूँ, इधर 2 sodium, definitely I'm going to react with another Cl, CH3। in the case with carry out in the case of dry ether, don't take any water molecule, पानी मना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये क्लोरीन एटम आएगा या ये क्लोरीन एटम आएगा और ये कंबाइन हो जाएगा इसके साथ and you are getting what CH3 plus you are getting what two molecule of NaCl। इसको क्या बोलते हैं, अल्केन। विच अल्केन, दिस इज इथेन। So methyl chloride will react with sodium in the presence of dry ether gives corresponding ethane। Now instead of this CH3 अगर मैं इसकी जगह C2H5 लिख देता हूँ, C2H5Cl। ठीक है, अभी क्या मिलेगा, ध्यान से बता सकते हो जल्दी से देखो, ये तो इधर ये C में आने वाला है, क्या आएगा, क्या ना से ब्यूटेन। देखो ट्राई करके देखो, CH2 में क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला है ब्यूटेन मिलेगा। ठीक है, ओके, दिस इज व्हाट रिएक्शन विद द मेटल। अभी इस वुड्स रिएक्शन के बारे में और एक बात ध्यान से देखो, इधर मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय वुड्स रिएक्शन, बराबर है, क्योंकि अगर सोडियम लेते हो तो तुम लोगों को 2 मॉलिक्यूल तो लगने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने कैसे रिएक्शन देखा था, इधर रिएक्शन हम लोगों ने ऐसे देखा था, RX प्लस Na और प्लस XR। इधर ड्राई एथर लिया था तो क्या हो जाता था, 2NX मिलता था, और ये 2 अल्काइल ग्रुप। अगर सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप भी लिया तो इधर 1 कार्बन एटम होगा, इधर भी 1 कार्बन एटम होगा। ओके, सो मीथेन कैनॉट प्रिपेयर बाय दिस, वेरी ट्रू। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। सिमेट्रिकल अल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर व्हाट्स रिएक्शन। यस, नोट इन दिस रिएक्शन व्हेन जिंक मेटल इज यूज्ड देन इट इज नोन एज फ्रैंकलिन रिएक्शन। एक्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये बात याद रखनी तुम लोगों को। इसको थोड़ा कलर करते हैं, फ्रैंकलिन रिएक्शंस। ओके, सो व्हाट्स रिएक्शन में अगर इंस्टेड ऑफ सोडियम तुम लेते नहीं हो और तुम लोगों ने इसको क्या लिया, जिंक लिया, तो क्या मिलेगा, फ्रैंकलिन रिएक्शंस। ओके, ये बात ध्यान से रखना याद। ठीक है, सो मैग्नीशियम मेटल इज नॉट यूज्ड इन रिएक्शन। यस, नो डाउट अबाउट दिस, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर सोडियम रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम की रिएक्शन अल्काइल के साथ कैसी होती है। सो अल्काइल व्हेन रिएक्टेड सोडियम डेफिनेटली इट गिव्स व्हाट, अल्केन। इंस्टेड ऑफ सोडियम अगर वो जिंक यूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैंकलिन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन इज again Wurtz reaction। okay, halogen gives alkyl group, formation of higher alkenes। example देखते थोड़े, alkyl halide reacting with water sodium। okay,
देखो क्या क्या मिल रहा है, ड्राई ईथर मिलेगा, तो अल्काइल ग्रुप अल्किन मिलेगा। एग्जाम्पल लिया मिथाइल ब्रोमाइड का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोमोइथेन। ओके, चेक करो क्या क्या मिलेगा, एग्जैक्टली बराबर है। ओके, क्या मिलेगा, इथेन का एग्जाम्पल्स ये हम लोगों ने अभी देखा था। नेक्स्ट वन दैट इज ब्रोमोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड लिया सोडियम के साथ, थोड़ा अलग ब्रोमोइथेन, तो क्या मिलेगा, ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ब्यूटेन मिलेगा। ओके, this method is not useful for two different RX, yes, as it is result formation different alkane, same alkyl halide हम लोग लेते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा इधर नीचे की, इधर मिथाइल ब्रोमाइड लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, और इधर थोड़ा इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो क्या मिलेगा, ड्राई ईथर में मिलेगा, तो ये गेटिंग अ कॉकटेल। अगर ये एक साथ कलेक्ट हुए रिएक्ट हो जाता है सोडियम के साथ, ये मिलेगा। दूसरा भी मिल सकता है कि ये और ये दोनों एक साथ मिक्स हो जाएंगे, तो इथाइल मिथाइल भी कंबाइन हो जाएगा। ओके, और ये भी हो सकता है कि इथाइल इथाइल भी कंबाइन ईच अदर, तो क्या मिलेगा। सो तुम लोगों को डिपेंड अपॉन मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इधर क्या मिलेगा, इधर इथेन मिलेगा, इधर इथेन मिल सकता है, मिथाइल मिथाइल इथेन मिलेगा, इथाइल इथाइल ब्यूटेन मिलेगा, इधर भी ब्यूटेन मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज इम्पॉसिबल, सो डोंट यूज दिस रिएक्शन फॉर व्हाट, टू डिफरेंट आरएक्स, सेम अल्काइल ग्रुप रहेगा, अल्काइल हाइड रहेगा, तो हम लोग वो रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। यस, अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन देखा अल्काइल हाइड का, वो था सोडियम के साथ। अभी देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन विद मैग्नीशियम। आरएक्स अल्काइल हाइड ले लो, रिएक्ट विद मैग्नीशियम एटम, ठीक है, क्या मिलेगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू यूज अ ड्राई ईथर, RMgX मिलता है। RMgX मैग्नीशियम के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन, और एक नाम है इसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी इधर, सोडियम का रिएक्शन होगा, अभी लास्ट रिएक्शन चल रही है मैग्नीशियम के साथ, टेकिंग अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है, एक्सप्लेन करने में इतना मज़ा नहीं आ रहा है। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके बीच में क्या आएगा, मैग्नीशियम चला जाएगा, ठीक है। Let's move to the next one now. Just now you're seeing preparation of organic reagents. Let's move to the next reaction. Okay, one important note is there. Instead of ether, tetrahydropurine or anisole can be used in the preparation of Grignard reagent reaction. Let's move to the next one is MCQ on this. First MCQ, RX when react with the sodium, definitely we are getting what a butane. Then what is RX? Okay, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर भी देखा था। RX ब्यूटेन मिल रहा था। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन इज दिस CH3 CH2 CH2 CH3 कंबाइन हो रहा है, सोडियम कंबाइन करता तो अल्केन देता है, तो क्या रहेगा, ये एक अलग रहेगा और ये अलग रहेगा, ठीक है। देखते क्या आएगा, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ओके आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। सो यू गेस द आंसर, यस इट इज इथाइल। नेक्स्ट वन, Which metal is used in Grignard reagents? Okay, Grignard reagent अभी तो हम लोगों ने देखा था मैग्नीशियम्स की, so very simple chemical reactions. Now just move to the next one is, अभी तो हम लोगों ने जितना भी रिएक्शन देखा था ये सब ये है, 1 2 3 4 5 6 and last one is this. तो आज लोग हम लोगों ने इतना रिएक्शन देखा 9 10 11 12. After this finishing reactions you are going to start now haloarenes. Okay, so in the evening definitely you are going to say, I will say another video of haloarene. And tomorrow you are going to finish this topic, that is halogen derivative of an alkene or alkyl halide and haloarine, ठीक है। So try to solve as many as questions possible. Thank you very much.